Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of preparing the financial statement. Meaning of the financial statement has been explained. Need and importance, users, everything, in theory everything has been explained. Yesterday I would like to explain how the income statements are prepared. One of the mode of the income statement is preparing the trading account. My dear children, in trading account, the closing entry, journal entry, and what's the item debited in trading account, what's the item credited in trading account, these all have been explained through the video, through the live class, and how the trading account is prepared. Going through the practical question from your textbook, the question number first, I will prepare the trading account at the green board. Before preparing the trading account, again I would like to explain why the trading account is prepared and what's the role it plays. So dear, the trading account is prepared in income statement, in financial statement, to ascertain the gross profit of the organization or to ascertain the gross loss of the organization. Now remember this. Means it shows the profit and loss account and trading account, shows the financial performance of the business organization. We can ascertain by preparing the trading account, and how this one is prepared. Just the question number, first practical question given in your book. First, preparing the trading account, just we can draw the line. The page of your notebook should be divided in two equal parts. This way you have to do the things. Now, this one is the format of the trading account. Now you can see in middle just the line horizontal, vertical line should be drawn, and the column of amount. Here the column of amount. You can see this way, the column of. Now you can column of amount. Just this one is the particulars. Particulars are name of account mentioned in this column and amount debit.
amount debit. This one is the debit column and this one is the credit column. And top of the head written whatever the things given. Trading account for the year ending. Trading account for the year ending on just the date given 31st March 2017. 31st March 2017. And this one is the also credit side, particulars. Amount. Now see in your book, go through your practical question, whatever the items given, opening stock, purchase, sales, wages, carriage inwards, purchase returns, sales returns, custom duty, gas, fuel and power, dock charges, carriage outward, manufacturing expenses, factory lighting, office lighting. These are the name of the accounts that is given in your question. And you have to consider the direct expenses from this one. Direct expenses related to purchase of goods, manufacture of goods and bringing the goods to the godown, to the business place. Remember, it has been explained. डायरेक्ट एक्सपेंस वह होता है बेटा जो आपको माल को बनाने में जो खर्च हो, माल को गोदाम तक लाने में, मुकाम तक लाने में जहाँ से आप बेचते हैं वहाँ का खर्च, या माल को मंगाने का खर्च, बनाने का खर्च, ये खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, प्रत्यक्ष खर्च होता है। इसे ट्रेडिंग अकाउंट में इसे ही केवल शामिल किया जाता है। और डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, और एक एक हेड मैं पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन करता भी जाऊँ। ओपनिंग स्टॉक रिटन इन डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। So you can write two opening stock, two opening stock. The amount given 2,50,000. 2,50,000. Opening stock. The goods are remaining unsold of the previous year that will become the opening stock of current year. So to opening stock 2,50,000. Then after purchase, just you can write to purchase. To purchase. आप देख रहे हैं परचेज यदि आपको मिलता है खरीदारी, तो ये देखिए परचेज रिटर्न नहीं दिया है। अगर जो ट्रायल बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न मिलेगा। तो इसमें देखो परचेज रिटर्न दिया है 22,000 रुपये का, परचेज आपका 7 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 लाख। इन साइड अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में 7 लाख लिख करके और उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, ये बताया जाता है। तो आप लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न माइनस 22,000। अब 6,78,000 होगा। 22,000 माइनस करेंगे 7 से, 7 लाख में से तो 6,78,000। ध्यान रहे इसको बनाते वक्त यूनिट के नीचे जो अमाउंट का कॉलम है, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000, जो भी हो आप राइट हैंड साइड से लिखते आएंगे तो आपका देखने में ये स्टेटमेंट भी सुंदर लगेगा और आपको ऐड करने में आसानी होगी। अब आइए सेल्स। सेल्स will be shown in the credit side of the trading account. So here you can write buy sales. अब उसके पहले ये भी ध्यान देना है कि सेल्स रिटर्न दिया गया है तो सेल्स है आपका 18 लाख रुपए, लेस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न दिया गया आपका 36,000 माइनस 36,000। अब इसको भी इन कॉलम में लिखेंगे। अगर जो सेल्स रिटर्न दिया रहता है तो सेल को डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में न लिख करके पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखकर सेल्स रिटर्न घटा करके डिडक्ट करके हम उसे अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 17 लाख, 18 लाख है तो 17 लाख 36,000 1 लाख में से माइनस कर दीजिए तो आएगा 17,64,000 64। उसके बाद वेजेस, मजदूरी, दिस वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट द पेड फॉर द कैरिंग द गुड्स टू द गोडाउन, ये मान लिया जाता है टू वेजेस। टू वेजेस 2,06,000 ऐसे आप लिखते जाएंगे। जो डेबिट का होगा उसे डेबिट में, जो क्रेडिट का होगा उसे क्रेडिट में। कैरेज इनवर्ड, आंतरिक ढुलाई मीन्स कैरिंग द गुड्स, आप सामान मंगाने का ये है तो टू कैरेज इनवर्ड्स लिखा है। आंतरिक ढुलाई इसे कहा जाता है, मतलब माल मंगाने का कार्य, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स आपका हो गया 34,000। उसके बाद परचेज रिटर्न लिख चुके हैं, सेल्स रिटर्न। कस्टम ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी, माल को आपने इंपोर्ट किया है वह है कस्टम ड्यूटी लगा, उस पर कितना है 15,000। आपने रॉ मटेरियल विदेश से मंगवाया तो वो लगा। उसके बाद गैस, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री में आपके गैस, फ्यूल एंड पावर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो टू गैस, फ्यूल एंड पावर। नेम ऑफ अकाउंट्स दिया है, पूरे साल का ये खर्च है तो कितना है 60,000। 60। उसके बाद डॉक चार्जेस, बंदरगाह पर कुछ ड्यूटी आपने पे किया तो टू डॉक चार्जेस। डेबिट में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, टू डॉक चार्जेस 8,000। क्लियर। अब आइए कैरेज आउटवर्ड।
इनवर्ड और आउटवर्ड में हम अंतर आपको बताना चाह रहे हैं। कैरेज आउटवर्ड का मतलब हो गया बेटा कि हमने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब माल बेचा उसकी ढुलाई हमने पेमेंट किया, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन कर, तो ये हो गया 2, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये आपका कितना हो गया? 2,48,000। $2,48,000। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का खर्च, माल बनाने का खर्च है बेटा, फैक्ट्री लाइटिंग मतलब जो आपने प्रोडक्शन किया उसमें ये बिजली का बिल आया है, फैक्ट्री लाइटिंग 96,000, 96,000। क्लियर? उसके बाद ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग से मतलब नहीं होता है, ऑफिस लाइटिंग से कोई मतलब नहीं होता बेटा। चाक ले लूं जरा सा। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वहां से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का ये किया जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹6 लाख, नीचे दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट कॉलम में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 6 लाख। 6 लाख। अब बेटा क्या करते हैं, यहां देखिए दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल आप करेंगे और ये देखिए कि किधर का टोटल आपका अधिक है, वो बैलेंस होगा। अब क्रेडिट कॉलम 23,64,000 आ गया क्रेडिट कॉलम का, 64,000। और इधर का आप जोड़ेंगे, देख लीजिए सीधे सीधे आप जोड़ेंगे, लाख वाला पहले आइटम जोड़ लीजिए, 2 तो 4 6 10 2 12 लाख ये हो गया। अब ये आप 50 और 78,000, 1 लाख इसमें भी हो गया, 50 50 1 लाख 78,000 है ना, 1,28,000 और 6 28 6 28 2 30 4 34, 1,34,000 और 34 34,000 आपका है ये, 4 4 8 और 3 3 6 68, तो 1,68,000, 15,000 और जोड़ दीजिए, 68 10 78 5 83, 1,83,000, फिर 60,000 उसमें जोड़ना है, 1,83,000 60,000 जोड़ेंगे तो 2,40,000, 60 जोड़े 83, 2,43,000, 2,43,000 और 8,000 और जोड़िए तो 2,51,000, 48,000 और जोड़ लीजिए, 2,99,000 और 96,000 और जोड़ लेंगे तो 99 में 96 जोड़ दें, 9 4 15 को 5 9 9 18, 1,95,000 ये हो गया, और वो 2 लाख तो 3,95,000। अब 6 2
6 तो 8, 2 10, 2 12 थी 15,99,000 रुपये, 15,95,000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है, द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड। तो आप लिख लेंगे 23,64,000 और उसमें से जब माइनस करेंगे डिफरेंस टोटल डेबिट 15,95,000 का, तो आपका 7,69,000 रुपये, 7,69,000 आपका ग्रास प्रॉफिट होगा, बिकॉज क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है। यहां पर लिखेंगे टू ग्रास प्रॉफिट, टू ग्रास सकल लाभ, आपके फर्म ने लाभ कमाया है बेटा, मतलब क्रेडिट का टोटल एक्सीड कर रहा है, वेदर द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द फर्म इन्वॉल्व इन अर्निंग द प्रॉफिट, वेदर द अगर जो डेबिट साइड अधिक होता तो आपका ग्रॉस लॉस होगा, डिफरेंस अमाउंट होता है, यदि क्रेडिट साइड अधिक होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो डिफरेंस जो होगा वो ग्रॉस लॉस होगा। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बेटा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस तरह से स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का बनाया जाता है। इसका फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं माल बनाने के या माल मंगाने के, ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज रिटर्न के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके माल मंगाने के या माल बनाने के खर्च होते हैं, उनको हम डेबिट कॉलम में रखते हैं, और जो हमारा क्रेडिट कॉलम में सेल होता है, सेल से सेल को माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यदि बाहर है, इतना आइटम रखने के बाद हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, फिर डेबिट का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से अधिक है तो फर्म लाभ कमाएगी, और वो डिफरेंस अमाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है। यदि डेबिट का टोटल अधिक है तो आपका फर्म क्या करेगी, क्रेडिट साइड का कम है तो लॉस होगा, और फर्म जो है आपका हानि कमाएगी, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। थैंक यू वेरी मच।